ہوتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے اور عبادت کے لائق ہی وہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کس بات پر گواہی دیتے ہو؟ دیکھا ہے؟ جب تم وکیل گواہ پیش کرتا ہے عدالت میں، کہتے ہیں جی میں گواہی دیتا ہوں، تو جج کہتا ہے تیرے سامنے مرڈر ہوا، تو دیکھ رہا تھا؟ ثبوت کس بات پر ہے؟ تم کس بات پر گواہی دیتی ہو؟ دیکھا ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا میں گواہی دیتا ہوں اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی خدا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے تو کس بات پر گواہی دیتا ہے؟ گواہی کے در سے آ گئی۔ سبحان اللہ کہیں گے اس دفعہ؟ بھائی گواہی کیسے آگی؟ دیکھا ہے؟ سارے جواب دیں گے نہیں۔ اہل حدیث دے گا میں نے خدا کو دیکھا نہیں، تشیع دے گا کہ میں نے خدا کو دیکھا نہیں، اہل تسنن کہے گا کہ خدا کو دیکھا، حنفی والے، مالکی، شافی اور حنبلی سارے کہیں گے کہ خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن گواہی دے رہے ہیں کس کے کہنے پر؟ وہ یہی کہے گا کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد مصطفیٰ کے کہنے پر، رسول خدا کے کہنے پر گواہی دیتے ہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، خزیمہ، کیا نام ہے جی؟ خزیمہ انصاری، یہ صحابی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو ایک منڈی میں دیکھا گھوڑا پسند آ گیا نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے بات طے کی، یہودی تھا اس کا مالک، تو جتنے اس نے مانگے رسول اللہ کے پاس اس وقت نہیں تھے، تو جو دینے والا ہوتا ہے پاس نہیں رکھتا، وہ باندھ کر آ جایا کرتا ہے اپنے گھر۔ بات سمجھ آئی نا؟ پچھلے جمعے پر ایک بات میں نے کی تھی کہ ہاتھ خالی ہو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ فقیر ہے، شاید وہ دے کے فقیروں میں لٹا کر واپس آ رہا ہو اور تم سمجھو کہ ہے ہی نہیں۔ تم دیکھو نا جا کے اللہ سب کو لے جائے مدینے، تو دیکھو نا ادھر جا کر وہ فقیر جا کر جب سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی جو حالت زار ہوتی ہے اس کا کیا لطف اور کیا برکت حاصل ہوتی ہے، دیکھنا ذرا ان لوگوں کو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، سرکار نے گھوڑا یہودی سے پسند آیا، بات طے ہو گئی، سرکار نے واپس آتا ہوں، گھوڑا پاس رکھو میں زر لے کر آتا ہوں۔ گئے جا کے اس کے مطابق وہ دینار درہم لیے، واپس آئے تو اس نے بولی لگائی ہوئی تھی، یہودی نے اگے میں بیچے، اس سے اوپر دام لگ گیا تو دا لگانے آ رہا تھی، اتنا 11 درہم 12 درہم اوپر جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام گئے، جب اچانک گھر گئے، واپس اچانک اجلت میں تھے تو صحابہ بھی پیچھے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام اچانک گئے اور اچانک جانے لگے تو اتباع میں آئے صحابہ، سارے واپس، سارے صحابہ تھے ساتھ، تقریباً فاروق اعظم وغیرہ سارے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے تو بولی لگائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اوے اللہ کے بندے، تو نے یہ گھوڑا بیچا نہیں مجھ پر؟ تو سرکار نے فرمایا نا گھوڑا بیچا نہیں، اسی انداز میں کہا گواہ لاؤ گواہ لاؤ گواہ لاؤ۔ گواہی اس سے مانگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر گواہ ہے۔ اتنی لطف کی بات میں نے نہیں کی جتنا تم جتنا بولے ہو، تھوڑا اونچی آواز سے سا پاؤ، لگنا ہے کہ پورا سال روزے وچ بیٹھے ہو، اونچی آواز نہ کرو سبحان اللہ، لطف سے کہا کرو، بولا کریں تھوڑا۔ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ گواہ لاؤ گواہ لاؤ۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی کہ گردن اڑاؤں اس کی، صحابہ آگے لپکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تلوار نیام میں رکھو، اجلت نہ کرو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا کہ میرا کام ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں گواہ بھی پیش کروں۔ اب جب بات طے ہوئی رسول اللہ کی اس یہودی کے ساتھ، کوئی صحابی مسلمانوں میں ساتھ نہیں تھا کہ بطور گواہی پیش کرتا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ نے جتنا یہ مطالبہ کر رہے ہیں گھوڑے کی بات انہوں نے کی ہے اور تو نے دیا تھا۔ بات طے ہو گئی، اس نے کہا اچھا گواہی آ گئی، لین دین ہوا تو اسی مجمع بھی پھٹا نہیں، ٹھیک ہے، منڈیوں میں آپ دیکھتے ہیں مجمع پھٹا نہیں، رش لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خزیمہ کی طرف منہ کیا، فرمایا کہ خزیمہ جب میں نے بات کی ہے تو نے گواہی کس بات پر دی ہے؟ تو تھا ہی نہیں اس وقت۔ میرا موضوع ہے نا جو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے مذہب دیتے ہیں، کس بات پر گواہی دیتے ہیں؟ خزیمہ نے یہ واقعہ پورا کر دیا، 1400 سال پہلے لے کے جا رہا ہوں، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد
के हवाले से, सियाक़े सित्ता के हवाले से लेके जा रहा हूँ। सरकार ने पूछा कि तूने गवाही क्यों दी थी, तू तो था ही नहीं, गवाही क्यों दी? साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो एक घोड़ा है, आपके कहने पर खुदा पर गवाही दे दी है, ये क्या चीज है? जब आपने कह दिया खुदा है, देखा नहीं है, फिर भी गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंची आवाज में साफ हो थोड़ा, लुत्फ लो, गवाही देने का मजा तो आएगा ना। हम गवाही देते हैं तो क्यों देते हैं कि किसके कहने पर? मोहम्मद ने कह दिया तो है। मैं तू तो था ही नहीं, घोड़े की तूने गवाही क्यों दी है? हमने पुरसरात कमरी वाले देखा नहीं, तूने कहा है, हमने कह दिया है। तूने कहा ये कलाम खुदा का कलाम है, हमने ना जिब्रील उतरते देखा, ना वही का सिलसिला पता ही नहीं। तेरे कहने पर जिब्रील को माना, कुरान को माना, अनदेखे खुदा को माना, ये तो घोड़ा है, हमने इतना कुछ मान लिया है। घोड़े की क्या हैसियत है? सुभान अल्लाह, घोड़े की क्या हैसियत है? नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ये बात हो ही नहीं सकती कि नबी के पाक बारगाह में कोई अपना मोहब्बत का नजराना पेश करे तो महरूम रहे, सरकार उसको अता न करे। अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। सुभान अल्लाह। ये हो ही नहीं सकता कि कोई अपना नजराना मोहब्बत बारगाह रिसालत माह में पेश करे और नवाजा ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने तूने बात ठीक की है, घोड़े की क्या सी, तूने मेरे ही कहने पर तो सारी कुछ बातें मानी हुई हैं, फरिश्ते माने हैं, अपने मंडिया ते चाह के फिरते हैं। पार महसूस होया करे कि थक गए हो, बंदा कहे कि मैं बड़ा थक गया, ते या फरिश्ते कोशा कीता होवे कि हम बस कर दे करतूत, पुठे लिख लिख के थक गए, ऐसा भी थोड़ा मौका दे भी लिख ले। किसी ने गोशा सुना मैं कन्ना जी, कोई हवा शवा लगी होवे? नहीं। मानते हो कि नहीं मानते? सब चीजें गैब हैं, फरिश्ते गैब, दफ्तर गैब, जो कागजात लिखते हैं सारे गैब, पता ही नहीं कागज किधर हैं, कैसे हैं, किधर जा रहे हैं, आ रहे हैं नहीं, है ही नहीं, पता ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने गवाही तो दी है, आज क़यामत के दिन तक मेरे बाद दो मर्द मिलकर गवाही देंगे तो गवाही मुकम्मल होगी। तू एक गवाही देगा तो तेरी एक की दो जगह गिनी जाएगी, तो पूरी हो जाएगी गवाही। ये ज़ू शहादतैन आपका लक़ब है, मैं इल्मी बात कर रहा हूँ। ज़ू शहादतैन, खुज़ैमा ज़ू शहादतैन, ओ खुज़ैमा अंसारी जो दुआ शहादत वाला बंदा है, ऊंची आवाज़ में बोलो सुभान अल्लाह। ये जब कुरान जमा करने की बारी थी, तदवीन कुरान की बात हो रही थी, दौरे फारूकी उस्मानी में, फारूकी में उस्मान गनी और हज़रत अली शेर खुदा और दीगर सहाबा और आले बैत के खाने इसको जमा कर रहे थे। दुर्रा लेकर फारूक आज़म हतीम के दरवाजे, काबे के दरवाजे पर हतीम में खड़े हैं, ये दरवाजे पर। एक साहबी कहते आगे कि मैंने ये सूरह सुनी है और रसूलुल्लाह ने ये पढ़कर बताया था ये सूरत है, उतरी है, ये आते ये फलां सूरत की है, मैंने सुनी है और ये दो गवाह मैं साथ लाया हूँ। बारी आ गई खुज़ैमा अंसारी की, आगे बढ़े, जिसको रसूल ने कहा तू दो गवाहियां, एक देगा गिनी दो जाएंगी। उच्चा मारना का सुभान अल्लाह। भाई मुख्तार है ना, अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है, जो मर्जी करो, इख्तियार है आपको। उन्होंने कहा कि खुज़ैमा अंसारी कहा कि मैंने सुना है रसूलुल्लाह को ये सूरह तौबा की आखिरी आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, आखिरी दो आयतें पढ़ी। फरमाया ये मैंने सुनी है रसूलुल्लाह के बारगाह में और मैं खुद ही गवाह हूँ, इस पर मैं खुद ही गवाह हूँ। फारूक आज़म ने दुरा निकाला कि गवाह लाओ, ये क्या बात हुई कि खुद ही काजी, खुद ही दावा, खुद ही वकील, खुद ही जज और खुद ही शाहिद, ऐसे नहीं हो सकता, गवाह लाओ। इस पर काजी और कुज़ात की बात होती है, उलमा में ऊपर कर्ज कदूरी हिदाया पड़े कि कोई बंदा ऐसा हो कि वो गवाह भी खुद ही हो और दावेदार भी खुद ही हो, वो क्या करेगा? फिर इसका मामला एक और हुआ कि काजी भी खुद हो और गवाह भी खुद हो। कई साहबा ने याद कराई, साहबा ने कि फारूक आज़म को कि जनाब अमीर अल-मोमिनीन दुरा अंदर रखो, ओ बंदा बे रसूलुल्लाह कहया कि तू एक गवाही देवेगा गिणियां दो दसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म ने कहा अच्छा इस बात पर मुझे गवाहियां दे दो।
इस पर फिर लोगों ने कहा कि इसमें तो तुम खुद मौजूद थे, अब बात खुद भूल गए हो। इस पर काज़ी कुज़्ज़ात की बात हुई ऊपर उलमा में कि अगर कोई वाक़या ऐसा हुआ वक़ुआ, और गलत नहीं कर रहे हैं ना, समझ आ रही नहीं आ रही भाई, और मुश्किल तरीन लम्हा है, सुने कि अगर काजी यानी जो जज है फैसला देने वाला, वो एक फैसला करता है, उसके सामने एक केस जाता है, उस केस में गवाह जज भी हो, इस तरह फारूक आज़म है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तू की गवाही देगा गिड़ियां 2000, वो फिर क्या करे, उसका क्या बनेगा, इस पर अलग बात हुई। तो मैंने कहा हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, देखा है, सारे मज़हब कहेंगे नहीं देखा, क्यों देते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कह दिया है तो खुदा है, ऊंची आवाज से बोलो खुदा है। फिर खुदा है तो खुदा के कानून भी फिर हैं, खुदा के अहकामात भी हैं, लागू होते हैं। और कुरान पाक की मैंने आया करीमा पढ़ी, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउल्लाह व रसूलह लअल्लकुम तुरहमून, कि नमाज अदा करो और ज़कात की अदायगी करो, अल्लाह के रसूल की इताअत बजा लो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब रहम लेने के लिए दरमियान में वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिसको बात समझ आ रही है वो बोले, इतना मुश्किल गल कोई नहीं कि भाई आप इताअत रसूल क्या है, सच बोलो, चुगली ना लगाओ, ठीक है, उन बातों दाएं हाथ से खाओ, उल्टे हाथ से ना खाओ, हलाल खाओ, ये सारे जो इताअत हैं जो मुसलमानों के तरीके अपनाने चाहिए, ये बात हम करेंगे तो हम पर रहम होगा। नकल किसकी लगाई जा रही है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मैंने गुज़श्ता जुमा पर कहा था, मैं टेस्ट देता हूँ कि नकल ठीक तरीके से लगाई जाए तो अल्लाह जन्नत भी अता फरमा देता है। नकल हमारे दीन में नकल ही है, जो हज करने उम्रा करने जाते हैं वो अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहनते, यार की मर्जी का पहनते हैं, अपनी मर्जी का पहनते हैं जी। अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है पाकिस्तान का, किसी दुनिया का सदर मदर जो भी है, मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा, अगर उम्रे की अदायगी के लिए जाएगा लिबास वो पहनेगा जो अल्लाह को पसंद है, अपने सारे फूल ला के रख के जासी, फूल वो लगेगा जो खलीलुल्लाह वाला फूल है, वगरना उसका हज उम्रा मुंह पे मार दिया जाता है कि फूल लेके सदारते लेके इवार लेके आता है, पास रख, मेरे पास अगर आना है उस लिबास में आ जो मैंने मुंतखब किया हुआ है, मोटा भी उसे नंगा करना कैसी, और तवाफ के दौरान वही काम करने पड़ेंगे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किए थे। अब बताओ, जिसकी याद को अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है उसकी जात का मकाम क्या हो सकता है। तो जो रसूलुल्लाह की तरफ करें, अल्लाह की रहमत की तरफ करें, तो दोबारा दोहराता हूँ, लुत्फ ले इस जुमले से कि जिसकी यादों को अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है, सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, दोपहर चले जाओ, अद्धी राती चले जाओ, ताजुद हर टाइम अदामा अपनाया जा रही हैं, अद्धा अद्धा मोटा नंगा ते चादर हैं चुकी ते नस रहे, तवाफ हो रहे, चल रहे, चक्कर हो रहे, उधर भी यादा इधर भी यादा, क्यों? और मैं ना इन चीज़ों नाल गर्ज नहीं, मैं बेनिशाना, निशान तब रखा हुआ है, एक दरवाजा मेरा है, एक दरवाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, बुआ इस वास्ते रखे है, मैं अंदर नहीं आ, जिस मुकान 3-4 महीने 6 महीने ताला लग जावे, ताले लगे और खुले ना, ते लोग के कहने अंदर की आ गए, सुन चैन पूत आ गए, के कहने अना बड़ा बेबरकता कर रहे यार, कमरा खुले कदे नहीं। जितने बैठे हो, मैं भी अल्लाह मैंने नसीब किया, जिस साहब बैठे हैं शादी, और जितने आप हज़रात बैठे हैं, आप आज उम्रा करके आए हैं, कदे दरवाजा खुले तो क्या नहीं, तो ऑफ करने की दरवाजा बुआ खुले है, ताला लगे है, तो के बेबरकती है या बरकत है इतने सारी, वो चल ना बोलो थोड़े, बरकत है, बुआ फिर भी बंद है लेकिन है बरकत, ताला लगे। लोगों का तो फॉर्मूला है कि ताला लग जाए तो कहते हैं जिन पूत आ जान, और उधर परियां जिन और पूत आ जाती हैं और बेबरकती छा जाती है। मैंने कहा नहीं, बाज दरवाजे ताले भी हो तो बरकत अंदर बड़ी होया करती है, ताले बंद है दरवाजा। और इधर एक लुत्फ की फकर की बात करता हूँ, मकर की नहीं, लुत्फ की बात करता हूँ। दरवाजा बैतुल्लाह को भी ताला होता है, बंद होता है, और मदीने चले जाए मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाली भी बंद होती है। सामने कोई ज़ियारत नहीं कर सकता, जाली तक हो, जाली के सामने खड़े हो, सलाम पेश करो। वो कहने नहीं सलाम करो तो बंदा कुछ नहीं आखना किथे करा सलाम, तुसी तो कहने हो है ही कोई नहीं अगे, तो सलाम किस नूं करवाने हो? नहीं, जिस तरह दरवाजा बंद होवे इसका हरगिज़ मतलब नहीं अंदर कोई ज़ात जलवा करनी बैतुल्लाह विच। अगर कोई नहीं तो तुसी मुंह किधर करते हो, तवाफ किधर करते हो? है ज़ात, मैंने कहा है ज़ात, है ही वही, और कुछ नहीं था तो वही था, और जब कुछ नहीं होगा फिर भी अल्लाह की ज़ात पर बोले फिर भी वही होगा, है ही वही, और बाकी कोई है ही नहीं, वही है। ठीक है, हमारी हसीयत ही क्या है? चराग की हसीयत सूरज के सामने क्या है? चराग और लालटेन और मोमबत्ती की हसीयत सूरज के सामने, चौदहवीं के चांद के सामने कोई हसीयत रखती है? उसकी हसीयत है, उसको लोग देखेंगे या 14वीं के चांद को लोग देखेंगे? हमारी हसीयत नहीं है, हम कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं, हम फनाइयत के मकाम पर हैं। जो बाकी ज़ात है वो खुदा की ज़ात है, और जो अपना ताल्लुक फनाइयत से निकाल कर बका के साथ कर लेते हैं, अल्लाह उनको भी अपनी ज़ात के पर्दाओं में जिंदा कर दिया करता है। शहीद की जिंदगी सामने है, नबियों की जिंदगी सामने है, सालिहीन की अहलुल्लाह की जिंदगियां सामने हैं। अल्लाह उनके निशान भी बाकी रखते हैं, नाम भी बाकी रखते हैं, मकाम और मर्तबा भी बाकी रखते हैं, और लोग जाकर कहते हैं जी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। सलाम बारगाह रिसालत में आप में पेश नहीं करता, वो बेचारा, मैं क्या कहूँ, मैं जुम्मे का दिन है, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, मकाम हैफ है, ईमान उसका पता नहीं किधर है या नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। सोचना चाहिए कि जिसकी बारगाह में चले जाओ बगैर सलाम के वापसी नहीं होती, सलाम दुआ तो कर लेनी चाहिए ना। ये कहते हैं जी तू बड़ा एहसान मंद नहीं है, बड़ा नाशुक्रा निकले हैं। वो क्या कि जनाब कहना तुम मैं कोलों लगे 2-3 दफा तो सलाम नहीं की, कल का नहीं तो पैर पकड़ना है, हम सलाम नहीं करते। भला तशबीह बिला मिसाल, काम पड़ेगा रसूलुल्लाह नाल, मरने का इरादा आसान है तो नहीं, वैसे इसे जिथे मरने आ, लेकिन जिब्रील इज़राइल का इरादा बनना है, अल्लाह हुक्म देवे तो बन जाता है इरादा। अल्लाह करे जिस समय आखिरी वक्त आवे तो सानू कलमा नसीब हो जावे, सारे बोलो ऊंची आमीन। तो इरादा जहाँ भी करा तो इरादा हो जाएगा, कईयां ना इरादा नहीं होना। हमारा तो किधर होता है इस दौर में, हम तो दिल लगा बैठे हैं दुनिया से, हमारा दिल नहीं करता, लेकिन बाज़ चीज़ें दिल ना करने के बावजूद भी आ जाती हैं, उफ्ताद आ जाती है, बीमारी आ जाती है, जवानी हाथों से सिरकती चली जाती है, जो लड़कपन होता है चला जाता है, खूबसूरती चली जाती है, सारा कुछ चला जाता है। हम उस पर कुछ नहीं दस्तरस रख सकते, ताकत नहीं है, हम उस कुल्ली तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जौबन चला गया, जवानी चली गई, और शबाब चला गया, सारा कुछ चला गया, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकना है बंदा जी बोलो? कोई बंदा नहीं कर सकता। नहीं तो रोक के रखा सी वक्त, अपना जवानी रोक के रखा, अपना वक्त, अपना उरूज अपने आप को रोक कर रखे। फिरौन नहीं रोक सकिया तो तू मैं के चीज़ा रोक सकता है, अगर वक्त तो खुदा ही रोक सकता है, खुदा ही रोक सकता है। खुदा जिसके लिए रोके या जिसके लिए वक्त को वापस लाए, ये खुदा की मर्जी हो जाती है। कभी वक्त वापस नहीं आया, एक दफा कहो सुभान अल्लाह, लुत्फ की बात देने लगा हूँ, वक्त वापस नहीं आया, कहने गया वक्त वापस नहीं आया, मैंने कहा गलत है, बाज़ औक़ात आ जाता है, एक दफा आया था, उन्हें कहा नहीं दसो, मैंने कहा यार मैं 2-4 लफ्ज़ पढ़े यार, तू 1000 दफा सुने हैं। नबी अलैहिस्सलाम दा सरे अक़दस ते अली दा गोद मुबारक है, हज़रत अली शेर खुदा दी, असर की नमाज अली नहीं पढ़ी, वक्त चला गया, सूरज डूब गया, तमाम लोगों ने लिखा, उर्दू अरब फारसी तमाम लोगों ने लिखा, पढ़ो उनको। हज़रत अली शेर खुदा रोए, अखा जो आंसू आए कि नमाज चली गई, नमाज दी अहमियत अली छोड़ सी, जब अली नहीं छोड़ सकता तो अली वाला भी नहीं छोड़ सकता। ऊंची आवाज में बोल जरा सुभान अल्लाह। अली नहीं छोड़ सकता तो अली वाला भी वही होगा कि जो वो काम अली करता है, पीछे अली वाला भी वही करता है। नमाज नहीं
पढ़ी। सरकार ने आंखें चश्मान मुकद्दस खोले, फरमाया अली नमाज क्यों रो रहे? फरमाया या रसूल नमाज मैं नहीं पढ़ी। सरकार फरमाया तो कज़ा शिरा कर ले बस। फरमाया ना, आपने इत्तबाअत और इताअत में था और आपके होते हुए मैं कज़ा करूं? तमाम लोगों ने लिखा हाँ। तुम कहते हो वक्त वापस नहीं आता, मैंने कहा उसके साथ राब्ते हो तो सूरज भी वापस आ जाता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इशारा किया, एक हदीस में उंगली का इशारा, एक हदीस में आपने दुआ की, या अल्लाह अली तेरी इताअत में और तेरे रसूल की इताअत में था, नमाज कज़ा की अदा करना चाहता है। सहाबा ने इधर उधर से फिर गवाहियां दी कि हमने देखा है सूरज असर के टाइम पे वापस आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, अहले सुन्नत की किताबें हैं, अहले सुन्नत की किताबें। तो हम कहते हो वक्त वापस नहीं आता, कहां से फार्मूला लिया? राब्ता खुदा हो, रसूल के साथ राब्ते हो, वक्त भी वापस आता है, सूरज भी वापस आता है। लेकिन ताल्लुक ठीक हो ना, बंदगी का, सजदे का जो मकाम और मर्तबा है, आशना हो बंदा, फिर अल्लाह भी कहना है कि साहब वापस जा, जहाँ अली ना सजदा रह गया है, ठीक है, तो वापस जा। तो वो सजदा भी करवाने के लिए सूरज अपने वक्त पर पीछे पलटता है। हालांकि सूरज इधर उधर जो मर्जी हो जाए, सूरज इधर उधर नहीं होते, लेकिन राब्ता खुदा हो तो हो जाया करता है। वाक़ीमुस्सलाम वातुज़्ज़का। मेरे सामीन ग्रामी कदर, मैंने आया करीमा पढ़ी थी, मैं दोबारा वो दोहराता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो और अदा करो ज़कात को, और अल्लाह के रसूल की इताअत करो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैंने गुज़श्ता साल भी और हर साल की तरह इस साल भी मैंने अभी पेश किया कि जो साहिब निसाब होते हैं कमरी हवाले से, ठीक है, जो हर बंदा आगाह है, कोई मुश्किल नहीं है। आज बंदा मुफ्ती और अल्लामा बना होता है, मोबाइल इधर उधर करके बंदा चेक कर लेता है। जो साहिब निसाब है, जिसके पास माल और ज़र रखता है, पैसे रखता है, जदाद रखता है, घर हैं, गाड़ियां हैं, जदातें हैं, बैंक बैलेंस है, ज़कात की वजूब उस पर लाजिम है, वाजिब है उस पर ज़कात, ठीक है। लाख पर 2.5% कितना आएगा? लाख, 1 लाख रुपया तो 2500 रुपया, कितना जी? ऊंचा बोलो। अल्लाह ने नायत देना है, मैनू नहीं कि मैं मंग रहा कि मैनू दो ना, असी ज़कात खाने वाले नहीं हाँ, अल्लाह ने नायत है। इधर एक अल्लाह का नाम, एक नुकता सुन लो, अल्लाह का देने वास्ते भी अल्लाह बैठे हैं, किधर नहीं के पावे जनाब है ज़कात लो, देखते अल्लाह को हो, लेकिन देना हाथ में जो जाता है किसी बंदे के हाथ में जाता है। बेशक बेशक। तुम्हारी ज़कात भी डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ नहीं जाती, बंदे तक जाते हो, बंदे तक। मैं फिर कहता हूँ, ज़कात की अदायगी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? किसी ऊंचा बोलो, तुसी कहते ना भी बोलो, गाले ही ठीक है, कुरान में आ गया तो गाले ना भी बोलो, बिल्कुल गाले ठीक है, कुरान में ज़कात अदा करो ना भी तुसी बोलो ना, गाले ठीक है कि ज़कात लाख रुपया, 2 लाख रुपया, करोड़ रुपया ऊपर चलते जाए, उन पर ज़कात की अदायगी है और साम रखे हैं, रखा हुआ है। फिर फालतू मकान है, एक में आप रह रहे हो, बाकी किराए पर हैं, उन्होंने भी बोलो, सारे बोलो ज़कात है। बीबियां कार शादीशुदा जो आती हैं तो कहती हैं हाथ ना लाइयो, मेरी मां मैंने देते बर्तन, वो खोलने नहीं देनी सारी जिंदगी। जो गैर मुस्तमिल बर्तन है उन पर भी सारे बोलो, जो इस्तेमाल नहीं होते बर्तन उन पर भी ज़कात है। वो कल पकड़ ले सुन, अल्लाह ने बारगाह से अल्लाह फिर गरम करके जहन्नम में सोने ते चांदियां ते अखियां ते लासी, ऐ बहुत चंगा लगना है ना, पैसा जायदाद ज़र बर्तन सोना चांदी ते ऐ अखा ठंडियां कर। अल्लाह महफूज फरमाए और हमें अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो जिसके पास है देना चाहिए, देना चाहिए, हम इंशाल्लाह अदा करेंगे सारे। मैं ही नहीं कहता आप नहीं करते, करते हैं, लेकिन मैं याद दहानी कराने के लिए करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया का कानून है ना, दुनिया में बांटेंगे तो कम होगा। गिनते हैं ना, दुनिया में देते हैं, हम इधर उधर करते हैं, पैसे ज्यादा होने या कट होने हैं। कोर्टें क्या कहती है आपका कलोकेट कहती हूँ तो क्या होगा कि कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, जो ज़कात अदा करता है वो माल कम नहीं होता। मोहम्मद कसम और गारंटी ठाकर गारंटी देकर कसम उठाकर कहता है, जिस माल की ज़कात अदा की जाती है माल बढ़ता भी है, उसमें बरकत भी आ जाया करती है।
وہ مال انسان کھاتا ہے وہ پھر توانا ہوتا ہے، بیماریاں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، ڈپریشن سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کرتے ہیں، محفوظ رہتا ہے، پاک رہتا ہے، وہ اس کی نسلیں مؤدب پیدا ہوتی ہیں، باپ کے سامنے زانو اتلمس طے کرتی ہیں، ادب بجا لاتی ہیں، وہ نہیں کہتا نہیں میں شتر بے مہار ہوں، نہیں، وہ حلال کما کے کھلائے گا، بچہ بھی پھر اس کے پاؤں دبائے گا، جو حلال کما کے اولاد کو کھلائے گا اس کا بچہ بھی اس کے پاؤں دبائے گا، لیکن پھر اگر ایسا کام نہ ہوا تو دبے ہوئے بابیاں باہر کٹ کے انگوٹھے لگانے انہیں۔ میں پاکستان کی گل کر رہا ہوں کسی اور ملک کی کر رہا ہوں، آپ پتہ ہے نا سارے کس طرح، ساری گلاں مینوں پتہ ہے، تساں سارے نہیں پتہ ہے واقعہ۔ پاکستان دے واقعہ ہوا جی، انگوٹھا دبے بابیاں کٹ کے انگوٹھا لوایا نے، کس واسطے؟ جائیداد واسطے۔ اللہ محفوظ رکھے، ایسے جرتوں سے بھی محفوظ فرمائے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام نے شاید کوئی اور حکمتیں تھی، شاید ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر اکھاڑنا منع ہے۔ رسول اللہ تک رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم یا کہ آسی تے وہ اپنے ایک پلاٹ واسطے بابے نا اتھوں کو برزخی مغلا چو کٹ کے انگوٹھے لوا رہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے حق پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔